Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important lecture, and that is regarding constitution. Previously we talked about constitutional law, right? And we talked about what is constitutional law, what is constitution, and what are the characteristics of a good constitution, so on and so forth. So we carry on the same lecture today, and in today's class we are going to talk about constitutionalism and one more important topic, which is conventions and law. Sometimes a question is asked in the paper regarding conventions and law. Particularly this question is asked in constitutional law paper, right? Since constitutional law paper requires the knowledge of law, the knowledge of constitution, the knowledge of conventions, the technicalities, the subject carries, so you are required to answer accordingly. So in today's class I am going to teach you about conventions and law, the difference between both, and how to answer a question if asked in constitutional law regarding conventions and law, right? Moreover, you are going to learn about constitutionalism. What is constitutionalism? Why people make constitutions? What are its functions? And what is the purpose of constitution? What are the elements that form a good constitution, the best constitution indeed? So kindly invite your friends, share the link of this lecture in our safe WhatsApp group, safe 6, so that those who have not received the link so far, that they also join us without any further delay. Some of you are here, that's wonderful, excellent, and those who may join it later may not understand the essence of the lecture. So life experience is the best experience in online classes, particularly in SAFE, because in life experience you can feel the energy that I have this time and I convey the same energy to you. It seems as if I'm looking at you and you are looking at me, and we both are sitting in front of each other. Moreover, if you encounter anything new or you find something difficult, you can ask the question instantly and get your answer instantly. So this is the benefit of live session. There are people or students, they might join this class at 9 p.m., 10 p.m., tomorrow, day after tomorrow, at their convenience, right? Or at their convenience, whenever they find it convenient, they listen to my lecture, they make the notes and they consult the relevant books I suggest. They might be jobbers, they might be working anywhere, and they might not be free at this time, and most of them, they contact me after the class and I solve their problems. Anyhow, those who are listening to me live here right now, they are I must say that they are loyal and responsible to their own future, right? And it is more beneficial to listen to the teacher when he is speaking than listen to the recorded lecture. So here we have like a kind of interactive session. We can communicate with each other
I'm speaking and you can write your questions, your thoughts, you can express your feelings regarding the lecture. And those who will attend the lecture right after the recorded version, so they might listen to me and I might be a speaker there and they might be just mere listener, right? They might not be participant. And here I am a teacher. I am teaching you, guiding you, instructing you, and you are the participants of the class, not mere audience or listener. So that is why you have to participate in the class by writing comments, questioning, by writing the definitions I utter, or you might note some of the references that I quote from the book. Ijaz Ahmad says, I have that book, but there is no such thing as constitutional law, administration of justice. Maybe I have the old version. Okay, then take the new version, like after 2019. Yes, so let's move on. Let me tell you some basic elements of the constitutional law. There are some basic elements of the constitutional law. First of all, we have popular sovereignty. Popular sovereignty, the government right to rule comes from the people. Popular sovereignty, it means that the government power comes from the people. ठीक है, इसको हम पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं कि हुकूमत भी आती है लेकिन लोगों की ताकत से आती है. लाइक दैट इज इन अमेरिका, दैट इज अ पॉपुलर सॉवरेनिटी. लोग वोट करते हैं, फिर एक शख्स सदर बनता है और लोगों की पब्लिक ओपिनियन जो है एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं हुकूमत के फैसले चेंज करने में और हुकूमत के फैसले बनाने में. इवन पाकिस्तान में भी यही होता है. ये पॉपुलर वोटिंग है और पॉपुलर सॉवरेनिटी है. इसी तरह अगरचे हम ये कहते हैं कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड, कि हमारी जो सॉवरेनिटी है पाकिस्तानी सॉवरेनिटी, दैट बिलोंग्स टू गॉड, वो सॉवरेनिटी अल्लाह के पास है. बस अल्लाह जो चाहता है वही होगा इस मुल्क में. मतलब शरीयत का कानून होगा, कुरान और सुन्नत का कानून होगा. लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में वो क्लियर कट कहते हैं कि दैट इज़ अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर इज़ अ पॉपुलर सॉवरेनिटी. तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में या एक मुल्क बनाने में, एक हुकूमत बनाने में लोग ही अहम किरदार अदा करते हैं. फिर है हमारे पास लिमिटेड गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट हैज़ ओनली द पावर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स टू इट. लिमिटेड गवर्नमेंट होता है. जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, तो कल हमने इस पर डिटेल बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद ये है कि हुकूमत को कंट्रोल में किया जाए. हुकूमत के जो 3 आर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इन तीनों को कंट्रोल किया जाए. इसको बेलगाम ना छोड़ा जाए कि बस जो चाहे वो करे. सो कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द लिमिट्स, द लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास भी इख्तियारात होते हैं लेकिन उसके पास जो है अब सारे के सारे इख्तियारात लेजिस्लेचर के पास भी नहीं है, सारे के सारे इख्तियारात जुडिशरी के पास भी नहीं है, सारे के सारे इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के पास भी नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिटेड गवर्नमेंट. अब पार्लियामेंट के पास अपने इख्तियारात होते हैं, जुडिशरी के पास अपने इख्तियारात होते हैं, और साथ में जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास अपने इख्तियारात होते हैं. फिर हमारे पास आता है एक तीसरा एलिमेंट, हम इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स. मतलब हुकूमत की जो सॉवरेनिटी है या हुकूमत के जो पावर्स हैं उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है ताकि पावर्स का मिसयूज भी ना हो और लोगों की लिबर्टी भी कायम रहे. ये 2 बड़े अहम पॉइंट्स हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स. सुलेमान निमरान ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, देयर इज चेक एंड बैलेंस. बिल्कुल ठीक है. तो अभी सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात हो रही है, चेक एंड बैलेंस की नहीं हो रही. तो हुकूमत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और तकसीम क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या सोच है. तो वो सोच ये है कि एक शख्स या एक इदारा, एक आर्गन, एक बॉडी
अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। तो जुडिशरी के पास उतने इख्तियारात हैं जितने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, मतलब अदलिया के अपने फैसले करना, ठीक है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना, बस उसका काम। लेजिस्लेचर के पास सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार है कि वो कानून साजी करे, कानून बनाए, और एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियारात हैं कि वो उस कानून को अप्लाई करे, इम्प्लीमेंट करे, इन्फोर्स करे, लागू करे। इससे ज़्यादा वो नहीं। अब अदलिया जो है कानून नहीं बना सकता, लेजिस्लेचर उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव जो है सिर्फ और सिर्फ उसको लागू कर सकता है। तो तीनों के पास जो है इख्तियारात अलग अलग हैं, और ये इसलिए ताकि मिसयूज ऑफ पावर ना हो और लोगों की जो लिबर्टी है वो वायलेट ना हो। ये दो फिलॉसफीज याद रखें। सेपरेशन ऑफ पावर्स टॉपिक जब भी आप डिस्कस करें तो आप ये दो पॉइंट्स ज़रूर लिखें पेपर में। तो जब लिख लिया कि मिसयूज ऑफ पावर ना हो, इसका मकसद ये है, और लिबर्टी, फ्रीडम मिले लोगों को, तब एग्जामिनर आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देगा और 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स देगा। बाज़ लोग इसको सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि पावर्स को 3 हिस्सों में तकसीम करें, लेकिन उसके पीछे जो वजह है वो नहीं बताते एग्जामिनर को, और जिसकी वजह से उसे मार्क्स फिर नहीं मिलते। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स मिलेंगे 10 में से, लेकिन फुल जो है 10 आउट ऑफ 10 कभी भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम जो है, अब अगेन जो है एक सिस्टम मुतारिफ किया जाता है एक आईन में कि 3 आर्गन्स आपने डिवाइड कर लिए, तीनों को अपने अपने पावर दे दिए। ये सच है कि अब मिसयूज ऑफ पावर नहीं हो सकता, एक शख्स दूसरे शख्स के काम में टांग नहीं लड़ा सकता। जैसे अदलिया कानून साजी नहीं कर सकता, कानून साज इदारा जो है अदलिया का काम नहीं कर सकता, इन्फोर्समेंट वाली एजेंसी जो है कानून नहीं बना सकता और कानून की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। तीनों जो है अलग अलग हैं, अपने ही हदूद में रहते हैं, लेकिन एक इदारा, एक बॉडी कम से कम अपने इख्तियारात का तो गलत इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो लेजिस्लेचर कम से कम गलत कानून भी बना सकता है। तो इसके पीछे फिर एक चिक होना चाहिए ताकि वो गलत कानून साजी ना करे। इसी तरह जब एक इन्फोर्समेंट की बात आती है तो एक शख्स एक चीज़ को इन्फोर्स करता है, तो फिर जब इन्फोर्समेंट करता है तो गलत तरीके से करता है, तब उस पर भी एक चेक होना चाहिए। जैसे सदर जो है कहें कि बस जाएं और आप फलां शख्स को आर्मी चीफ बना दे विदाउट एनी मेरिट एंड विदाउट एनीथिंग, ठीक है, आपने सारे के सारे, या एक सदर जाता है और किसी मुल्क के साथ मुआहिदा करता है, या प्राइम मिनिस्टर जाता है और वो मुआहिदा जो है बिना किसी से पूछे कर ले, तो फिर बात तो ख़तरनाक बनती है। तो इतनी आज़ादी तो किसी शख्स के पास नहीं होनी चाहिए कि उसके पास आपके मुल्क की बिल्कुल लामहदूद इख्तियारात हो। कोई बादशाहत तो नहीं है, ना ही डिक्टेटरशिप है कि ऐसी बात आ जाए। डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें इन सब चीज़ों पर चेक रखा जाता है, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम का मकसद ये है कि एक इदारा अपने ही इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे। सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक एंड बैलेंस में सिर्फ ये फ़र्क है। सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, उससे लोगों को मिसयूज से भी बचाया गया, लिबर्टी भी दी गई, लेकिन एक इदारा खुद अपने इख्तियारात गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। ये दोनों बड़े अहम टॉपिक हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर में भी, इसलिए इस पर मैं अलग से लेक्चर भी दूंगा आप सबको, ठीक है। अच्छा, फिर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है या एक फेडरल स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें पावर्स तकसीम हो जाते हैं सेंटर के दरमियान और यूनिट्स के दरमियान। यूनिट्स का मतलब स्टेट्स कह लें, यूनिट्स का मतलब प्रोविंसेस कह लें, सूबे कह लें। जैसे पाकिस्तान है, ये एक फेडरल स्टेट है, सेंटर के पास, वफाक के पास अपने इख्तियारात होते हैं और सूबों के पास अपने इख्तियारात होते हैं। ख़ासतौर पर 18वीं तरमीम के बाद ऑटोनमस स्टेटस दिया गया सूबों को, तो अब ये जो है एक फेडरल स्टेट है, ये भी होना चाहिए। इसी तरह रिपब्लिकनिज्म और पॉपुलर सॉवरेनिटी तकरीबन सेम है। रिपब्लिकनिज्म में जो है सिटीजन्स क्या करते हैं, दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स
they send them to the parliament, and then the representatives work on behalf of the citizens. फिर जो भी फैसले किए जाते हैं फिर वही लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में है, जैसे अमेरिका में है, तो वहाँ पर भी रिपब्लिकनिज्म है। लोग अपने नुमाइंदों को वोट देते हैं और वो नुमाइंदे जाकर पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं और वो फिर मुल्क का जो है बागडोर संभाल लेते हैं। अच्छा, फिर है हमारे पास इंडिविजुअल राइट्स। इंसान की जो बुनियादी हुकूक है, शहरी हुकूक है, या आपके जो अपने ज़ाती इनफरादी हुकूक है, वो जो है शामिल होने चाहिए आइन में। और यही चीज़ जो है फिर एक आइन को ज़बरदस्त आइन भी बनाता है। अब जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ आते हैं कि आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कि जब हम आइन बनाएं तो इसमें लोग जो है आम लोग, अवाम, वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखे। तो पहले बात जो आप लोगों की किताब में भी लिखी गई है, बड़ी खूबसूरत है, और वो ये है कि नो पीपल शुड गिव गवर्नमेंट पावर ओवर देम विदाउट फर्स्ट सेटिंग कंडीशन ऑन द यूज़ ऑफ दैट पावर, कि लोग अपने ही हुकूमत को कभी भी ऐसे इख्तियारात ना दे जब तक वो उन इख्तियारात के इस्तेमाल पर कंडीशंस ना लगाएं, शराइत ना लगाएं। जब उन सब पर शराइत लगा दिया जाता है, अब आपने किसी शख्स को अदालती इख्तियार दे दिया कि आप हर किस्म के अदालती फ़ैसले कर सकते हैं, एक जज बना दिया, उसको जुडिशरी का नाम दे दिया, तो फिर उस पर चिक रखे, ज़रूर रखे, ताकि वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख ले, सदर बनाया, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, किसी को मिनिस्टर बनाया, किसी को जो एक जगह को सूबा बना दिया, एक जगह को कैपिटल बना दिया, एक को विफाक बना दिया, एक को सेंटर बना दिया। तो फिर ये सब कुछ जो है आपने क्या करना है, उस पर एक लिमिट रखना है। पिछले पुराने ज़माने के जो है जो किंग होते थे और क्वीन होते थे, इस तरह नहीं करना है। जैसे थॉमस हॉब्स ने सवरन बनाया और उसने कहा कि तमाम के तमाम लामहदूद इख्तियारात जो हैं सवरन का कहो, सवरन को दे दो, और व्हाटएवर ही सेज बिकम्स द लॉ, और वो सब कुछ कर सकता है, किसी को ज़िंदगी भी दे सकता है, किसी की जान भी ले सकता है, किसी से ज़िंदगी भी छीन सकता है, कोई उसके सामने आने वाला ना हो। जब सवरन इतना मजबूत होगा कि वो खुद कानून भी हो, वो खुद पार्लियामेंट भी हो, वो खुद एग्जीक्यूटिव भी हो, वो खुद जज भी हो, तब मुआशरा ठीक होगा। ये थॉमस हॉब्स ने कहा था। इसी तरह प्लेटो ने भी कहा था कि एक फिलासफर किंग होगा और वो फिलासफर किंग बिल्कुल हर किस्म के जो है फैसले खुद ले सकता है। तो अब ऐसा बादशाह आएगा तब तो मेरी और आपकी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो तो ख़त्म हो जाती है, लोगों की अपनी आज़ादी जो है वो तो ख़त्म हो जाती है। तो एक शख्स में ये सब नहीं देना। इसी तरह जब आपने ये कर दिया तो उस पर चिक रखे, क्या रखे, चिक रखे, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखे कि आप ठीक है बादशाह बने लेकिन अपने ही हद में बने। अब मैं जो है इसकी मिसाल दूंगा आप लोगों को। मैग्ना कार्टा 1215 में जब ये पहला डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वर किया जाता है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में, और न सिर्फ यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में बल्कि पूरी दुनिया के जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है वहाँ पर मैग्ना कार्टा का ज़रूर जो है, क्योंकि ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट है जिसने एक किंग के पावर्स को उस पर चेक रखा, उसको कंट्रोल में रखा, कह दिया। इसमें क्या है, थोड़ी सी 2-3 सेंटेंसेस बता देता हूँ। उसमें कह दिया मैग्ना कार्टा में 1215 में कि किंग जो है उसके पास ठीक है लामहदूद इख्तियारात हैं, एब्सोल्यूट पावर्स हैं, लेकिन एक शख्स से कभी ज़िंदगी, उसकी फ्रीडम नहीं छीनी जा सकती, ज़िंदगी नहीं छीनी जा सकती, प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा सकती, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको महरूम ज़िंदगी से नहीं किया जा सकता विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि जब तक उसको एक ख़ास तरीक़ेकार से नहीं गुजारा गया तो आप एक बादशाह की तरफ नहीं कह सकते कि आप आ जाए उसको पकड़े और उसको कत्ल करे, उसको ख़त्म करे।
ऐसा नहीं होगा। तो ये जो है पहला एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने किंग के जो इख्तियारात हैं उस पर एक चेक रखा कि किंग भी किसी शख्स की ज़िंदगी या उसकी फ्रीडम नहीं छीन सकता, उसको बिना किसी वजह के अरेस्ट नहीं कर सकता, उसको डिटेन नहीं कर सकता, उसको थोड़े से जगह किसी वक़्त के लिए रख नहीं सकता, और उस जब तक उसको एक ख़ास ट्रायल से न गुजारा गया हो, अदालती निज़ाम से फैसलों से ना गुजारा गया हो। जब उसको सज़ा देनी है तो उसको हक दे दे पहले। तो ये पहला हमें आईन में पहला डॉक्यूमेंट मिलता है, हमने उसको नाम दिया मैग्ना कार्टा, और ये आया 1215 में। इसमें आपका एक एमसीक्यूज भी जो है आज क्लियर हो गया। मैग्ना कार्टा कब हुआ? 1215 में। तो ये एमसीक्यूज आता है 1215, आप लोग याद रखें। ये किसका के मुल्क में हुआ था? तो ये इंग्लैंड, यूके के आईन में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारी जो बात हो रही है वो ये है कि लोग जो है हुकूमत को पावर्स दे रहे, लेकिन साथ में उस पर शराइत रख दे ताकि उस पर एक लिमिट कायम हो। अब सवाल ये बनता है कि हुकूमत को लोग पावर्स क्यों दे, क्यों उसको सवरन बना दें, क्यों उसको जो है अपने ऊपर मुसल्लत करें? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोगों के जहन में भी शायद आया हो कि हम क्यों अपनी आज़ादी किसी को दे रहे कि जनाब आए और हम पर हुकूमत करें, हमें सज़ा भी दे अगर हमसे गलती हो जाए। वजह क्या है? तो वो ये है कि अमन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशी के लिए, ठीक है, एक सेंट्रल पावर का होना लाजमी है, और वो सेंट्रल पावर जो होता है वो हुकूमत ही होती है, और वो हुकूमत ही एक्सरसाइज कर सकती है। मैं तमाम गांव के लोगों के साथ या शहर के लोगों के साथ या सूबे के लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकता, और ना ही मैं उनके खिलाफ जो है अपने हकूक़ की, राइट्स की हिफाजत कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पीछे अगर हुकूमत खड़ी हो तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं आई एम द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और मैं भी इतना हक रखता हूँ यहाँ पर इस मुल्क पर जितना कि तुम रखते हो या जितना कि सब पाकिस्तानी रखते हैं। तो जो हुकूक इन सब पाकिस्तानियों को हासिल होंगे वो मुझे भी हासिल होंगे। अब ये मैं किस बुनियाद पर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पर, और मेरे पीछे फिर हुकूमत खड़ी होती है। तो सेंट्रल अथॉरिटी से क्या होता है कि आपके राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड हो जाती है। अगरचे कुछ ममालिक में आज भी कॉन्स्टिट्यूशन इतना नहीं है, सेंट्रल पावर इतना मजबूत है कि वो इंसानों को डराए हुए हैं। वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ थॉट, इवन कोई बुक तक नहीं लिख सकता। अखबार जब लिखे जाते हैं तो वो भी स्टेट कंट्रोल होते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको चंद ममालिक की दूंगा, उसमें चाइना भी शामिल है। पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा, दिस इज़ आवर बिलवेड कंट्री। किसी हद तक यहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कंट्रोल है, लेकिन ये बातें आप पेपर में खैर नहीं लिख सकते। सही, हाँ, इनडायरेक्टली लिख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये लाजमी है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच कायम हो जाए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब फिर ये है कि यहाँ पर फिर ट्रू डेमोक्रेसी होगी, और जब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक हासिल होगा तो फिर जो है हुकूमत अपने काम ठीक से करेंगी। अब जो शख्स आवाज़ उठाता है उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो आप अगर पॉजिटिवली लिख लेते हैं पेपर में, तब जो है आपको एग्ज़ामिनर मार्क्स दे सकता है, और ये भी कह सकता है कि हाँ ये थोड़ा सा ब्रेव शख्स भी हैं। अच्छा, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग बातें लिख देते हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ ही लिख देते हैं, लेकिन इलॉजिकल आर्गूमेंट्स के साथ, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इमोशनलिज्म इज़ नॉट एकेडमिक राइटिंग, क्योंकि अगर आप ये कह दें कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं पेट्रियाटिक हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो एग्ज़ामिनर आपको एक मार्क भी नहीं देगा। ठीक है, बिकॉज एग्ज़ामिनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर इमोशंस फॉर योर कंट्री। एकेडमिक राइटिंग डज नॉट रिस्पेक्ट सब्जेक्टिविटी।
एकेडमिक राइटिंग में सब्जेक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पर आप आई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पर आप वी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पर आप अपने ख्यालात या जो है अपने फीलिंग्स, मोहब्बत या नफ़रत जो है ये भी, उसका भी इजहार नहीं कर सकते। आप साइंटिफिक अप्रोच अपनाएं, आप बात करें आर्गूमेंट्स के बुनियाद पर, फैक्ट्स के बुनियाद पर, मिसालों के ज़रिए करें, फिगर्स के ज़रिए करें, फैक्ट्स के ज़रिए करें, तब जो है आपकी बात मानी जाएगी। अगर आप सिर्फ कहते रहें कि मैं पाकिस्तान का एक मुहिब वतन शहरी हूँ तो ये फजूल बात है। आई डू नॉट बिलीव दैट एनी वन इज़ पेट्रियाटिक टूवर्ड्स पाकिस्तान। ठीक है, हाँ प्रूफ है तो बस करे, पाकिस्तान के गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस पर बात करें, बस ये खुद ही प्रूफ करेगा कि हाँ आपको पाकिस्तान का कितना इल्म है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी जहन में रखें। ऑब्जेक्टिव राइटिंग, नॉट सब्जेक्टिव राइटिंग इन एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, ऐसे की बात अलग है, ऐसे सब्जेक्टिव होता है, वो खैर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ऐसे में। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आप जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहे, एकेडमिक रहे, कोर्स डाले, डिफिनीशंस डाले जितना भी मुमकिन हो सके आपसे। मैं ज़रूर ये नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफिनीशंस डालें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोटेशंस डालें, नहीं, ऐसा भी नहीं कहूँगा। बस जितना मुमकिन हो सके, जितना याद है उतना ही, जितना आप ओरिजिनल लिखाई करोगे दैट इज़ मच बेटर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या करता है, एब्सोल्यूट पावर देता है, लेकिन कोई पावर जो है एब्सोल्यूट पावर नहीं होता, तो इसलिए भी जो है उस पर थोड़े से चेक रखें। इतने पावर्स भी हुकूमत को ना दें कि आपके अपने ही जो इख्तियारात हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, या आपकी अपनी ही लिबर्टी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से कहा जाता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं तो लोग इस बात को जहन में रखें कि अपनी जो है आज़ादी को मुकम्मल तौर पर कुर्बान ना करें, बल्कि पावर्स दे दें हुकूमत को, लेकिन साथ में कंडीशंस रखें। अब एक हुकूमत है काम नहीं करती और आप कहें कि बस आप सब कुछ करें, नहीं, हुकूमत काम नहीं करती, उसको जाने का हक हासिल है। ठीक है, आप उसको घर वापस भेज सकते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फिर हक होना चाहिए, रेफरेंडम भी होना चाहिए। ठीक है, एनी हाउ वो फिर बात की बातें हैं, कहीं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है, अदम एतमाद का वोट क्या है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत होती है, आप लोगों के बुक में एक हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ही काम करती है। ठीक है, और इसका फिर मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट्स मेक द लॉज एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स, कि गवर्नमेंट वो कानून बनाती हैं जो कि सिटीजन्स पर एप्लीकेबल हो। कॉन्स्टिट्यूशन सेट द फ्रेम, फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेट द फ्रेम एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट, के कॉन्स्टिट्यूशन फिर वो फ्रेम बनाती है जिसके मुताबिक हुकूमत ने अपना काम करना है, कानून साजी वगैरह करनी है, अपने पावर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ये होता है वो रेगुलेशन और कवायद और ज़वाबित बना दिए जाते हैं हुकूमत की तरफ। तो दो चीज़ें आपको अब आती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में फ़ायदा क्या है या इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि हुकूमत को भी इख्तियारात मिले ताकि लोगों के लिए कानून साजी करे, ताकि लोगों को भी अच्छे सिटीजन बनाएं। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन फिर क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन फिर कंट्रोल करता है हुकूमत को। तो ये एक फ़ायदा है कॉन्स्टिट्यूशन का, और यही कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद भी है। अब सवाल ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जब लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, तो अब इसको अप्लाई कैसे करें। ठीक है, या एक कानून बनाते वक्त क्या करें हम, तो इसके लिए दो चीज़ों का होना बड़ा लाजमी है। एक को हम कहते हैं डिसीशन और दूसरे को हम कहते हैं फोर्स, FORCE, फोर्स। नीलम अकबर, वेयर इज दिस चैप्टर इन द बुक, फर्स्ट चैप्टर है ये, पेज 28, 29, 30, 31, इन्हीं पेजेस में से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा, तो बात हो रही थी जनाब डिसीशन और फोर्स की, कि जब आईन बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, एक
लॉ बनाया गया, तो अब इसके लिए क्या चीज जरूरी है? एक तो डिसीशन मेकिंग पावर हुकूमत के पास होनी चाहिए, लेजिस्लेचर के पास होनी चाहिए कि वो जो है अच्छे से अच्छे फैसले करें। अब सिर्फ और सिर्फ फैसलों से कुछ नहीं होता, सिर्फ किताबें बनाने से कुछ नहीं होता, मीटिंग्स करने से कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें जो है इट डज नॉट मेक एनी इफेक्टिव रिजल्ट्स। कौन सी चीज जरूरी है? दैट इज द फोर्स। किसी भी कानून के पीछे एक फोर्स होता है, और उस फोर्स की वजह से आप भी उसको मानते हैं, मैं भी मानता हूं। चाहे आप डर कर मान ले या इसको एक नाम दे दे कि मैं एक अच्छा सिटीजन हूं, उसकी वजह से मानता हूं। लेकिन ये दो चीजें जो हैं लाजमी होते हैं। डिसीशन लेना, डिसाइसिव फोर्स जो है ये लाजमी है। डिसीशन प्लस फोर्स, तब ही कानून इम्प्लीमेंट होगा, तब ही जो है उसके पास जितना फोर्स होगा वो इस्तेमाल करेगा। अब डिसीशन कौन लेता है कानून साजी का? लेजिस्लेचर लेता है। फिर एग्जीक्यूटिव कौन क्या करता है? उसको इन्फोर्स करता है। कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट से, फिर पार्लियामेंट से कानून बन गया, अब ये एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, सदर और सदर से लेकर नीचे पटवारी तक, ये अब इन सब का काम है। आप लोग ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आप भी जो है एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होंगे, आपका पोस्ट भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, तो पीएमएस में जाएंगे और सीएसएस में जाएंगे। तब ये आप लोगों का काम होगा कि अब जो कानून बनाया गया अब इसको इम्प्लीमेंट करें इन ट्रू स्पिरिट एंड लेटर। तब ही जाकर लॉ जो है इफेक्टिव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होता है। ठीक, अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। एक है रूल ऑफ लॉ, कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट होगा, इफेक्टिव होगा, इम्प्रेसिव होगा, कन्विंसिंग होगा, परसुएसिव होगा, लोग उसको फॉलो करेंगे जब उसमें रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ मीन्स द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, के कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कानून की बालादस्ती ही सब कुछ है। आप जो है एक वजीर आजम को भी अदालत में खड़ा उसी अदालत में खड़ा कर सकते हैं जिसमें आप एक आम आदमी को खड़ा करते हैं, तब हम इसको कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ। और ये रूल ऑफ लॉ जो है हर एक आइन में हम देखेंगे आगे चलकर, जब हम पाकिस्तान के आइन को स्टडी करेंगे, इंडिया के आइन को स्टडी करेंगे, यूके के आइन को स्टडी करेंगे, अमेरिका के आइन को स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है। अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम उस पर भी बात करेंगे। और यही तरीका होता है कि दुनिया में आप जब भी जो है पेपर में आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पर लिखते हैं तो वहां पर यही पॉइंट्स आप अप्लाई करते हैं। आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये चैप्टर याद कर ले और इसी चैप्टर को फिर हर एक कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई करें और देखें कि ये सारी चीजें एक मुल्क में है या नहीं है। अब पाकिस्तान में देख ले कि यू रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है। अगर है तो बेहतर मुल्क है, अच्छा मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है। हमारा जो रूल ऑफ लॉ का सिस्टम है, इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जब आते हैं और इसी तरह जो इंसाफ के या जस्टिस के जो है सर्वे होते हैं, उसमें हमारे मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ के लिहाज से जो कारकिर्दगी है वो मेरे ख्याल में जो मैंने पढ़ा है वो 39 ममालिक का हुआ था एक सर्वे, और उसमें हमारा मुल्क 124 पर आया। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन के लिहाज से 180 ममालिक में हमारा मुल्क 124 पर है। तो अगर ये देखा जाए तो हमारे मुल्क में तो करप्शन का भी बुरा हाल है और रूल ऑफ लॉ का भी बुरा हाल है। जुडिशरी जो है बस डैम के पीछे लगी हुई है, जुडिशरी जो है अस्पतालों के पीछे लगी हुई है, जुडिशरी जो है पॉलिटिसाइज हो चुकी है। तो पॉलिटिशियंस अपना काम नहीं कर रहे हैं, जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही, आर्मी अपनी काम नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेट्स जो है अपना काम नहीं कर रहे, तो मुल्क का जो है बेड़ा गर्क है। सही, अगरचे ये अल्फाज मेरे सख्त हैं, आप पेपर में इस तरह नहीं लिख सकते, आप इसको पॉजिटिव सेंस में लिखें। एक नाम दे रहे बेड गवर्नेंस का, आप फिर मिसालें दे रहे ये रिपोर्ट के साथ दे रहे कि रूल ऑफ लॉ के लिहाज से पाकिस्तान इस नंबर पर है, करप्शन के लिहाज से पाकिस्तान इस नंबर पर है, और उसके वजूहात
जो है बैड गवर्नेंस है, उसमें जो है लीडरशिप रोल की कमी भी है, उसमें हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी शामिल है, पॉलिटिकल लीडरशिप की जो वीकनेस है वो भी शामिल है, साथ में ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी, ब्यूरोक्रेट्स जो है, आप ब्यूरोक्रेट्स ना लिखे ब्यूरोक्रेसी लिखे, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको भी पॉलिटिसाइज किया गया है और वो भी जो है अपना काम आज़ादाना नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह कई मिसालें हैं, आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, बस उसी को कोट कर दें। ये मेरे ख्याल में 2020 और 2019 का है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एलिमेंट है, बेस्ट एलिमेंट है, वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के जब भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो साथ में ये बात ज़रूर लिखें दैट इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कि इससे ऊपर कोई कानून नहीं होगा, यही सुप्रीम कानून है। और जब कानून साजी की जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी। अगर एक भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, नल एंड वाइट करार दिया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इस पर हमने बात भी की। चौथा पॉइंट जो है फंडामेंटल राइट्स, इंसान की जो बुनियादी हुकूक है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होने चाहिए, ज़रूर शामिल होने चाहिए। बुनियादी हुकूक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर दिया गया है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स कौन होते हैं, कौन से होते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जब आपको ना मिले तो आप इवन अदालत में भी जा सकते हैं और आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं कि हुकूमत जो है इस पर काम नहीं कर रही और मुझे अपने बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है, तो कोर्ट जो है आपको फिर प्रोटेक्शन दे सकती है। एनीहाउ, ये थोड़ी सी आइडियल बातें हैं, प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है। कोई भी शख्स, मिसाल के तौर पर फंडामेंटल राइट्स में हमारा एजुकेशन है, तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि वो अदालत गया हो और अपने हुकूक के लिए हुकूमत पर केस किया हो कि एजुकेशन मेरा बुनियादी हक है और मुझे तालीम नहीं दी जा रही। ऐसा नहीं हुआ है पाकिस्तान में। तो वो प्रैक्टिस और थियरेटिकल बातें उसमें आ जाती हैं। तो फंडामेंटल राइट्स भी कुछ इस तरह है। बाज़ ममालिक कहते हैं, जैसे चाइना, रशिया, कहते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स तो देते हैं, बुनियादी हुकूक देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में जब बात आ जाती है तो प्रैक्टिस में वहाँ पर अदलिया आज़ाद नहीं है, अदालती जुडिशल रिव्यू भी नहीं है। इसी तरह अदालतें सिर्फ वो फैसला करती हैं जो हुकूमत चाहती हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ आप केस नहीं कर सकते वहाँ पर चाइना में। तो फंडामेंटल राइट्स पर कहाँ से आ गए? आसमान से आ गए। तो आइन में तो लिखा जाता है लेकिन प्रैक्टिस में होता नहीं है। तो यही वजह है कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने किसी को नहीं सुना कि वो कहे कि मुझे चाइना की सिटीजनशिप मिले, मैं चाइना जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर बुनियादी हुकूक नहीं है। मैं वहाँ पर जाऊँगा, मुझे इंसान तस्वर नहीं किया जाएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये आखिरी पॉइंट है और ये जो है आइन में शामिल होना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है तब ही एक आइन ज़बरदस्त आइन है और चलेगा भी, नहीं है तो बात ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कन्वेंशंस की बात करें जब कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बस इस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 5-6 मिनट लूँगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन अहम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कन्वेंशंस जो आइन में होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है तो अब उसके लिए सोर्सेज होते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। कुछ चीज़ें मज़हब से भी ली जाती हैं, जैसे पाकिस्तान में जब आइन बनाया गया तो उसने कहा कि जो हमारे बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं आइन बनाने के वक़्त, वो हमारे हैं कुरान और सुन्नत। हम जब भी कोई कानून बनाएंगे तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, ठीक है। अब ये जो है एक सोर्स हो गया कानून बनाते वक़्त, तो कुरान और सुन्नत क्या है? एक सोर्स है। इसी तरह बाज़ कॉन्स्टिट्यूशन है, बाज़ नहीं तकरीबन सारे कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशंस का एक बहुत अहम किरदार होता है। कन्वेंशंस को हम नन लीगल रूल भी कहते हैं, नन लीगल रूल, कि ये लीगल नहीं है, नन लीगल रूल। इसमें कन्वेंशंस आपके रिवायात भी आ जाते हैं, यूजेजेस भी आ जाते हैं, आपके हैबिट्स भी आ जाते हैं, इसमें आपके कस्टम्स भी आ जाते हैं, रस्म व रिवाज और ये ट्रेडिशंस वगैरह,
कल्चर, ये सब कुछ कन्वेंशंस में आ जाता है। अब कन्वेंशंस का मकसद क्या है और ये हेल्प क्या करता है कानून साजी में? जब एक आईन बनाया जाता है और फिर एक कानून बनाया जाता है तो वो कन्वेंशंस को देख लेते हैं कि इस मुल्क में क्या कन्वेंशंस है, तो बस उसी के मुताबिक आसानी से वो कानून साजी होती है। तो ये क्या करता है, कन्वेंशंस फैसिलिटेट द लेजिस्लेटर्स टू फॉर्म और टू फ्रेम और टू मेक अ लॉ, कि एक कानून जब वो लोग बनाते हैं तो कन्वेंशंस वहां पर हेल्प करते हैं। और जब कन्वेंशंस बनाए, अब ऐसा कानून जब बनाए पार्लियामेंट जो कन्वेंशंस लोगों की रिवायात, रस्म रिवाज और उसकी रिलीजन वगैरह के मुताबिक हो, तो वो उसको जल्दी से एक्सेप्ट भी कर जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में उन लोगों ने एक सोर्स उठाया कुरान और सुन्नत, तो जब भी कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा तो कोई शख्स जो है उसके खिलाफ नहीं जाएगा। और अगर एक ऐसा कानून बनाया गया जो थोड़ा सा भी मुतसादिम हो विद द प्रोविजंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना, देन यू माइट सी प्रोटेस्ट ऑन द रोड्स। तो फिर यही होता है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर लोग कहते हैं कि ये पश्तूनों की रिवायत के ख़िलाफ़ हैं, ये पंजाबियों की रिवायत के ख़िलाफ़ हैं, कि ये सिंधियों की रिवायत के ख़िलाफ़ हैं, ये बलोचियों की रिवायत के ख़िलाफ़ हैं। हमें तो ऐसा कानून चाहिए जो हमारी रिवायात के मुताबिक हो। तो इसीलिए जो है कन्वेंशन एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। आपको बता दूं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी है दुनिया में जो अनडॉक्यूमेंटेड है, उसका एक खास किताब नहीं होता। जैसे पाकिस्तानी आईन का है, क्लास और आर्टिकल और ये सब कुछ लिखा होता है। इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में सारे के सारे कवानीन जो बनाए गए हैं वो कन्वेंशन के बुनियाद पर है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। आप पेपर में भी एग्जांपल के जरिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। एग्जांपल ये है कि Prime Minister of England will be from the majority party in the common house, House of Commons। हाउस ऑफ कॉमन्स जो पार्लियामेंट है उसमें जो लोअर हाउस है हम उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी से ही प्राइम मिनिस्टर आएगा। अब ये एक कन्वेंशन था, पहले एक कन्वेंशन था, बाद में जो है इसके लिए एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट के तहत अब ये बिल्कुल आईनी बात हो गई है। लेकिन ये कहां से आया? एक कन्वेंशन बनाया गया। अब कन्वेंशन जब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और लोग उसको ब्रीच क्यों नहीं करते, ये भी बताता हूं। जब कन्वेंशंस, चलो इस बात से पहले दो चीजें और बता देता हूं। कन्वेंशन और लॉ, एक कन्वेंशन रिवायत होती है, एक लॉ होता है। तो लॉ जो है रिटन होता है, कन्वेंशन अनरिटन होता है। लॉ जो है वो पार्लियामेंट से पास होता है, कन्वेंशन आपकी सोसाइटी से आता है। लॉ जो है बस चंद ही लोग बैठे होते हैं पार्लियामेंट में, उसकी जब मेजॉरिटी होती है और वो डिसीजन लेते हैं तो वो लॉ बन जाता है। फिर वही लॉ जो है कानून जो है एग्जीक्यूटिव के पास पहुंच जाता है और एग्जीक्यूटिव उसको साइन करके फिर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये प्रोसीजर है पार्लियामेंट का। अब बात आ जाती है कन्वेंशंस की। कन्वेंशंस तो सोसाइटी में होते हैं। अब कन्वेंशन कैसे बनता है ये तकरीबन आपकी किताब में लिखा भी है कि ये ऐसे नहीं बनता। ये लोगों के जो आइडियाज़ हैं, रस्म रिवाज हैं, ये तकरीबन इट टेक्स मोर देन 70 ईयर्स टू फॉर्म अ न्यू कन्वेंशन। एक नई कन्वेंशन बनाने में तकरीबन 70 साल लगते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पर इसने मिसाल फिर इंग्लैंड की दी और इंग्लैंड की मिसाल ये है कि एक कन्वेंशन बना कि क्वीन जो है प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट की कोई भी बात नहीं टाल सकती, और अगर वो जो है उसके अपने ही मौत के वारंट पर साइन क्वीन से मांगे तो वो साइन जरूर करेगी अपने ही मौत के वारंट पर। अब ये क्या है? ये कन्वेंशन है और इस कन्वेंशन को बनने में कितना टाइम लगा? 70 साल लगे। तो इसलिए कहा जाता है कि इट टेक्स 70 ईयर्स कन्वेंशंस जब बनता है। सही। अब आते हैं कि लोग जो है लॉ को क्या करे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है वो कहते हैं कि लॉ की वायलेशन आप करें तो आपको अदालत में घसीटा जा सकता है, लेकिन आप कन्वेंशन को ना माने तो फिर अदालत का जो है फोर्स उसके खिलाफ नहीं होता। ये मैं आपको लॉ और कन्वेंशन का फर्क बता रहा हूं कि लॉ के पीछे एक फोर्स होता है, एग्जीक्यूटिव फोर्स। कन्वेंशन के पीछे एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं होता, उसके पीछे सोसाइटी होती है।
अब सवाल यह है कि ठीक है, लॉ को तो मैं मान लूंगा क्योंकि उसके पीछे एक बदमाश बेटा है, अदलिया है, एग्जीक्यूटिव है, पुलिस है, ठीक है, तो वो तो मजबूरी में आपने मानना है। कन्वेंशन को मैं क्यों मान लूं? अब एक प्राइम मिनिस्टर है, वो कन्वेंशन को क्यों माने? वो तो खुद ही पावरफुल इंसान है। फिर यहां पर बात आती है कि द ब्रीच ऑफ कन्वेंशन इज द ब्रीच ऑफ लॉ विच इज पनिशेबल। आप कन्वेंशन को नहीं मानते तो आप सोसाइटी के कल्चर को नहीं मानते। जैसे मैंने कहा कि अगर क्वीन जो है कभी इनकार करे प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से, अब वो कन्वेंशन है, इसी तरह जो है कैबिनेट के डिसीजन से वो इनकार करे, तो अगले ही दिन इंग्लैंड में उस क्वीन को खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब ये दो पावर्स आपस में लड़ने लगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो सियासी लोग हैं, वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू द क्वीन। क्वीन और किंग कभी जो है 1215 से पहले एंग्लो सैक्सन दौर में कभी जो है बड़े पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन अभी इंग्लैंड में जो किंग और क्वीन है दैट इज अ टिटुलर हेड, तो उसको फिर हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि मैं कन्वेंशन की वायलेशन करूं ताकि मैं जो है फिर जो है खत्म हो जाऊं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर बाय कन्वेंशन विल बी फ्रॉम दी, ये मिसालें जरूर अपने साथ नोट करें, बुक में नहीं है, हैं लेकिन कहीं दरमियान में होंगे। प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम दी मेजॉरिटी पार्टी इन दी कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है ये मेजॉरिटी हाउस से आएगा। अब ये एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन तो है, लेकिन क्या इस कन्वेंशन की ब्रीच हो सकती है? आप इसकी वायलेशन कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। कोई भी शख्स, कोई भी पार्लियामेंटेरियन, कोई भी सियासी पार्टी इस कन्वेंशन की मुखालिफत नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो शख्स मेजॉरिटी पार्टी से नहीं होगा तो फिर वो पार्लियामेंट में कानून खाक पास करेगा, क्योंकि उसको तो मेजॉरिटी पार्लियामेंट में चाहिए, तो फिर तो मुल्क नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर अगर माइनॉरिटी पार्टी से आ जाए, ठीक है, और मेजॉरिटी पार्टी उसके साथ बैठे भी नहीं पार्लियामेंट में, कानून साजी में भी हिस्सा ना ले, तो फिर तो मुल्क जो है बिल्कुल रुक जाएगा। तो इस वजह से जो है कन्वेंशन जो है दैट हैज इट्स ओन फोर्स। इवन कभी कभार लॉ जो है कन्वेंशन से ही बनता है, कभी कभार नहीं, मोस्टली जो है लॉ बनता है तो कन्वेंशन से ही बनता है। और कन्वेंशन से क्यों बनता है? क्योंकि कन्वेंशन जो है ऑलरेडी लोगों में मौजूद होता है, तो जो बात लोगों में मौजूद होती हैं आप उसी को लॉ बना ले तो वो आसानी से मान भी लेते हैं। और ऑलरेडी कन्फर्म, CONFORM, कन्फर्म, ऑलरेडी लोग उसके साथ जो है जुड़े हुए हैं, तो बस बात ही खत्म। ठीक है, तो ये सारी मिसालें आप पेपर में लिखें, कन्वेंशन और लॉ को डिफरेंशिएट करें, मिसालों के जरिए करें, और साथ में ये बता दें कि कन्वेंशन अनरिटन है, लॉ जो है रिटन है। कन्वेंशन के पीछे कोई फोर्स नहीं होता, ठीक है, एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं होता, लॉ के पीछे एक एग्जीक्यूटिव फोर्स होता है। लॉ जो है अगर हम उसको वायलेट करें तो लॉ ही रहता है, लॉ खत्म नहीं होता। लेकिन कन्वेंशन को आप ना माने, एक दफा ना माने, 2 दफा ना माने, 2 साल ना माने, 10 साल ना माने, तो वो कन्वेंशन खुद ब खुद खत्म हो जाता है और फिर नया कन्वेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जब आप पेपर में लिखते हैं इसी तरह डिफरेंशिएट करें, एग्जाम्पलीफाई करें, एग्जाम्पल दे दें, तो आपको आसानी से जो है 20 में से ये 18 और 17 मार्क्स मिल सकते हैं, on the condition that you have good command over your grammar accuracy, language accuracy and vocabulary का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नए नए अल्फाज देखें। vocabulary का मतलब ये है कि आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बेसिक पॉलिटिकल साइंस के टर्मिनोलॉजीज यूज़ करें, जैसे फोर्स, जैसे डिसीशन, जैसे रूल ऑफ लॉ, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे कन्वेंशन, जैसे लॉ, जैसे एक्ट, जैसे क्लॉजेज। यही टर्मिनोलॉजीज, यही वोकेबलरी आप लोगों ने फिर यूज़ करनी है। जज वगैरह यही सारी जो है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में काम आएंगे। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं।
मैं आप लोगों को यही 2 टॉपिक एज असाइनमेंट भी देता हूँ कि आप लोग रीड करें और जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है बस उस अपनी अंडरस्टैंडिंग 2-3 पेजेस पर लिख दे, एक पेज पर भी लिख दिया, सो दैट विल बी मोर देन इनफ। जी, क्लास थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज रिमेंबर्ड बाय द फ्री थिंकर्स आर सो कॉल्ड लिबरल्स, व्हाई डू दे अवॉइड आर्टिकल्स दैट क्लियरली स्टेट्स प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, इथिकल कोड्स एंड बिलीव्स। मुझे तो तुम्हारी क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि आप कहना क्या चाहती हैं। ठीक है, कि क्या है क्वेश्चन? इजाज ने किया क्या? सर, इजंट इट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वायलेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच? चलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर मैं आपको एक लेक्चर दूंगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुराद क्या है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुराद ये नहीं है कि आप कुछ भी कहे, आप स्टेट के खिलाफ भी कहें कि मैं पाकिस्तान को नहीं मानता, तो ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? कि आप पाकिस्तान को ही नहीं मानते, आप कहें कि मैं कल्चर ही नहीं मानता, मैं सोसाइटी ही नहीं मानता, मैं कन्वेंशन ही नहीं मानता, मैं खुदा को नहीं मानता, मैं रसूल को नहीं मानता, मैं कुरान को नहीं मानता। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उस पर अपने लिमिट्स होते हैं और आपने उस लिमिट्स के अंदर ही जो है इसको एक्सरसाइज करना है। एनी हाउ, हम उस पर, मुझे तुम्हारी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल दे दूंगा, जहाँ पर अगर फिर भी मसला हो तो आप ये क्वेश्चन कर सकती हैं। हाउ डू इंग्लिश सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द नेचर ऑफ पनिशमेंट इफ समवन वायलेट्स अ कन्वेंशन देयर? हाउ डू इंग्लिश, एक तो ये कि लोग जो है इंग्लिश सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, एक बात यह है कि अब इनका कन्वेंशन जो है, अब यही कन्वेंशन इसका कानून बन चुका है। ठीक है, अब इंग्लैंड में क्या है, वहां पर जुडिशियल जो डिसीशंस पिछले प्रीवियसली लिए गए होते हैं कन्वेंशंस के मुताबिक होते हैं, और आप उसको वायलेट करें तो वही कानून आप पर भी अप्लाई होगा जिसके तहत किसी और को सजा दी गई हो। ठीक है, तो यही जो है तरीक़ेकार होता है कि आपने कन्वेंशन को वायलेट किया तो वहाँ पर आपको ये सज़ा दी जा सकती है कि हमारा ये कन्वेंशन है। इससे पहले भी जो है आइन तो खैर नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि डिसीशन जो जुडिशल डिसीशंस है, ये कहूँगा कि उसके मुताबिक जो पिछले सज़ाएं हो चुकी है वही फिर उस शख्स पर भी अप्लाई होंगे। हाउ डज सुप्रीम कोर्ट आर एनी अदर अथॉरिटी डिसाइड द नेचर ऑफ पनिशमेंट इफ सम? देखो, एक तो आम कन्वेंशन होता है जिसके पास जो अभी तक उस पर कोई अमल ना हुआ हो। अब एक कन्वेंशन है, स्वरा का कन्वेंशन है, ये पश्तूनों में होता है। अब ये कन्वेंशन है लेकिन इसको वो अदालती हैसियत तो हासिल नहीं है। अगर आप इसको वायलेट करें तो अदालत तो आपको सज़ा नहीं दे सकती। ठीक है, लेकिन अगर एक कन्वेंशन ऐसा है जिसके लिए अदालत ने पहले कोई सज़ा दी है, ठीक है, तो फिर वो आप पर भी अप्लाई होगी। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर नई कानून साजी की जाएगी और उसके लिए पार्लियामेंट से जो है नया जो है उसको कहा जाएगा कि आप इस सारी चीज़ों के लिए जब एक नई चीज़ सामने आ जाए, एक नया क्राइम सामने आ जाए, जैसे साइबर क्राइम इस मॉडर्न एज का हिस्सा है, तो उसके लिए फिर नए कानून साजी करनी पड़ती है। वो पार्लियामेंट से होता है, वो सोसाइटी से फिर नहीं होता। सो फार इट्स इनफ। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स। थैंक यू।